Good morning, students. Our subject is Design of Concrete Structure 1. Our today's topic is Design of Column by Working Stress Method. Introduction Part 2. In last lecture, Part 1, we studied about what is column, introduction part of the column, classification of column, necessity of RCC column, and which material we used for column, what is longitudinal reinforcement, what is transverse reinforcement. We already studied in the last lecture. Today's lecture we are going to study about IS specification regarding column. We have to study here about IS specification, means Indian standard specification regarding column. For column we use IS 456-2000, page number 48, clause number 26.5.3. These clause used for column design. Okay, so here first part we have to design here longitudinal reinforcement. Longitudinal reinforcement means it is a column, its longitudinal reinforcement, and we provided here a ties. It is called as a longitudinal reinforcement. So the longitudinal reinforcement consists of a steel bar placed longitudinally in a column. It is called main steel. This longitudinal bar also called as a main steel. Okay, how design these longitudinal bars? What is area? What is spacing? We have to study here. First part, area of longitudinal reinforcement. Here ASC minimum, we have to calculate ASC minimum. ASC minimum is equals to 0.80% of AG, means 0.80% of total cross sectional area of column, means B into D. AST means 0.80% into B into D. It's a ASC minimum. And ASC maximum means 6% of AG, means 6% of total cross sectional area of column, means 6%, 6 divided by 100 into B into D. ASC maximum still we provided here. Okay, so ASC is a cross sectional area of longitudinal reinforcement. Here we provided a longitudinal reinforcement area of it. Second, B, in longitudinal reinforcement we have to calculate minimum number of longitudinal bars, means minimum bar. How many bar we have to provided minimum? In a rectangular column, means like this is a rectangular column, these 4 corners we have to provide a bar. So for rectangular column 4 numbers we have to provide a 4 numbers, minimum 4 number. Okay, and for circular column 6 numbers, means here a circular column 1 2 3 4 5 and 6, minimum 6 number we have to provided in a circular column. Okay, so 6C we have to study here. In minimum reinforcement, minimum diameter of longitudinal bars. The diameter of longitudinal bar shall not be less than 12 mm. जो हम longitudinal बार में जो बार्स प्रोवाइड करने वाले हैं तो उसका कितना होना चाहिए डायमीटर? 12 mm मिनिमम होना चाहिए. Okay, next D we have to study here spacing of longitudinal reinforcement bar, means this is a longitudinal bar and between the spacing the minimum clear distance between two main bars shall not be less than nominal size of aggregate plus 5. ये जो 2 बार्स है इसमें का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम स्पेसिंग. वो कितना होना चाहिए? एग्रीगेट की साइज प्लस 5, उससे कम नहीं होना चाहिए. मतलब एग्रीगेट की साइज है हमारी समझो 20 प्लस
5, तो कितना हो गया 25, 25 से कम उसकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्पेसिंग इज ग्रेटर देन नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार शैल नॉट मोर देन 300 mm अलॉन्ग पेरीफेरी ऑफ द कॉलम। जो हम यहाँ पे कॉलम में स्पेसिंग प्रोवाइड करने वाले ये मिनिमम 25 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इस दोनों के बीच में होना चाहिए। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 और 300, इन दोनों के बीच में वो स्पेसिंग होनी चाहिए। 300 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है, बार्स डिस्प्लेस हो सकते हैं, प्रॉपर होल्ड नहीं हो पाएंगे, तो स्पेसिंग 300 से हमारी कम ही होनी चाहिए। नॉमिनल कवर टू लॉन्गिट्यूडिनल बार्स, जो हम लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइड करने वाले हैं उसका कवर कितना होना चाहिए। ये हमारे कॉलम है, इसके अंदर हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड की, तो ये कॉलम और ये बार्स, इसके अंदर का जो इतना डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम कवर। दो बोथ साइड से हम ये प्रोवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम कवर। तो कवर कितना होना चाहिए 40 mm, मिनिमम 40 mm। और लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार में हमने जो लार्जेस्ट डायमीटर प्रोवाइड किया है लॉन्गिट्यूडिनल बार में, तो इन दोनों में से जो भी यूज़ विच एवर इज़ मोर, जो भी बड़ा है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। मतलब या तो 40 लेना है या फिर हमारा लार्जेस्ट डायमीटर होगा 20, तो 20 और 40 में कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है, तो हम नॉमिनल कवर कौन सा यूज़ करेंगे फिर 40 mm, यूज़ विच एवर इज़ मोर। नेक्स्ट, लैप लेंथ, वी हैव टू स्टडी हियर अबाउट अ लैप लेंथ। लैप लेंथ इज द लेंथ ऑफ ओवरलैप बार रिक्वायर्ड टू सेफली ट्रांसफर स्ट्रेस फ्रॉम वन बार टू अनदर। लैप लेंथ किसको बोलते हैं हम, अभी ये हमारा एक बार है और ये दूसरा बार है, तो ये दोनों यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसको बोलना है हमें ओवरलैप। ये कहाँ और क्यों प्रोवाइड करना है, समझो हमारा एक कॉलम है, उसकी हाइट है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से 6 फ्लोर तक पूरा है हमारा, उसकी हाइट है 35 मीटर। तो 35 मीटर का इतना बड़ा स्टील जो बार से वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है 35 मीटर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, इतना बड़ा बार तो हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार यूज़ करने का, फिर उसके बाद में दूसरा, ऐसे जितने बार लगेंगे उतने हम क्या करेंगे, ऐसे ओवरलैप में प्रोवाइड करते हैं। तो जो बार हम ओवरलैपिंग में प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लैप लेंथ। तो ये क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ओवरलैप ऑफ बार रिक्वायर्ड टू सेफली ट्रांसफर स्ट्रेसेस, ये जो स्ट्रेसेस है ये सेफली एक बार से दूसरे बार में जाने चाहिए, ट्रांसफ़र होने चाहिए, उसके लिए हम ये लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं। इफ़ टू डिफरेंट डायमीटर ऑफ बार आर टू बी लैप लेंथ बेस्ड ऑन स्मॉलर डायमीटर, तो जो स्मॉलर डायमीटर होगा उसके ऊपर हमारी ये लैप लेंथ डिपेंड होगी। तो लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो लैप लेंथ इन अ कॉलम शुड बी 45 डी। डी मीन्स डायमीटर ऑफ बार इन mm, 45 डी मीन्स यहाँ पे हमने 45 लिया, मल्टीप्लाई बाय डायमीटर होगा 20 mm, सो 45 इंटू 20, उतना उसका क्या होना चाहिए, लैपिंग लेंथ होनी चाहिए। और सेकंड है लैप लेंथ इन अ बीम स्लैब शुड बी 69 डी, कॉलम में 45 डी और बीम में और स्लैब में 69 डी इतनी होनी चाहिए। वेयर डी इज अ डायमीटर ऑफ बार इन mm, लैप मस्ट नॉट बी लेस देन 45 टाइम्स डी, 45 डी से ये कम नहीं होना चाहिए। लैपिंग लेंथ हमने यहाँ पे देखा कि ये एक बार है, ये दूसरा बार है, तो ये 2 बार हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए, तो ये जो भी यहाँ पे लैपिंग हो रहा है तो ये लैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए फिर 45 डी से कम नहीं होना चाहिए, उतना हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लैपिंग लेंथ हमने कम प्रोवाइड किया, एक बार यहाँ पे प्रोवाइड किया, दूसरा बार यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो ये लैपिंग लेंथ बहुत कम है, ये इतनी लैपिंग लेंथ है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे बार स्लिप हो सकते हैं और जितना लोड ट्रांसफ़र होना चाहिए वो होगा नहीं और हमारा कॉलम जल्दी से फेल हो जाएगा। कॉलम फेल नहीं होना चाहिए, बार स्लिप नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम ये लैपिंग लेंथ 40 डी से कम नहीं लेते। ओके, सो नेक्स्ट
लैटरल ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। हमने अभी लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की स्टडी की। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट में हमने कितना डायमीटर लेना चाहिए बार का, कितनी स्पेसिंग लेनी चाहिए, कितना एरिया ऑफ स्टील लेना चाहिए, ये सारा देखा लॉन्गिट्यूडिनल बार्स के रिलेटेड। अभी हमें यहाँ पे देखना है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के रिलेटेड देखना है। द lateral or transverse reinforcement in a column may be provided in a form of lateral ties or spiral helical। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मतलब ये हमारे बार है और ये ऐसे राउंड राउंड में हम जो प्रोवाइड करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ये बहुत बार हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जो सर्कुलर कॉलम्स होते हैं उसके अंदर इसकी ज़रूरत होती है, इसकी स्पेसिंग भी कम होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिंक, इसको हम लिंक भी बोलते हैं। ऐसे डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4, इसको बोलते हैं हम लिंक। टाइज भी बोल सकते हैं, लिंक भी बोल सकते हैं। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये बार से, तो ये बहुत बार डिस्प्लेस हो सकता है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बार को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। The lateral or transverse reinforcement in a column may be provided in a form of lateral ties और spiral। जो सर्कुलर कॉलम होगा इस पे अंदर हम ऐसा स्पाइरल प्रोवाइड करेंगे, और जो रेक्टेंगुलर कॉलम है उसमें हम ऐसे lateral ties में प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिंक, इसको लिंक भी बोलते हैं हम, रिंग भी बोलते हैं, लिंक, रिंग या फिर हुप ऐसा भी बोलते हैं हम, बाइंडर्स एक्सेट्रा। ये बार्स को बाइंड करके रखता है, वो हिलने नहीं देता, उसकी वजह से हम इसको बाइंडर्स भी बोलते हैं। तो ये कैसे डिज़ाइन करना है वो हम अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज स्पाइरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए उसकी हमें यहाँ पे भी स्टडी करना है। द डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन, जो भी हमारा यहाँ पे द डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन the diameter of bar is equals to 1/4 into लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार। जो भी हमने लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड किया है उसमें से बड़ा हमने 2 प्रोवाइड किए, समझो एक 20 mm का है, एक 16 mm का है, तो जो बड़ा है 20 mm वाला वो हम यहाँ पे लेंगे। तो कैसा आएगा फिर 1/4 इंटू 20, जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा डायमीटर ऑफ बार्स। और उसके बाद डायमीटर ऑफ बार 6 mm होगा। तो ये दोनों में से जो भी बड़ा है, यूज़ विच एवर इज़ मोर, इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो हमें यहाँ पे लेना है। अभी यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ बार हमने कितना लिया 1/4 इंटू लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ बार, हमारा लार्जेस्ट डायमीटर है 20, 1/4 इंटू 20 कितना आएगा 5 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो हम क्या लेंगे प्रोवाइड विच एवर इज़ मोर, तो हम यहाँ पे 6 mm के बार्स यूज़ करेंगे। काय के लिए, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मीन क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल बार से उसको होल्ड करने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसकी पिच कितनी रखनी है, मतलब स्पेसिंग, ये जो लैटरल टाइज है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बार्स में हमने ये जो टाइज प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर की ये स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, पिच भी बोलते हैं हम इसको, पिच और स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइज। ये टाइज में ये है हमारे टाइज, तो ये टाइज में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। द पिच और स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, मीन्स जो भी छोटा डायमेंशन है कॉलम का वो स्पेसिंग में लेंगे हम। मतलब अभी हमारा बी है हमारा 300 और डी है हमारा 450, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है 300, लीस्ट डायमेंशन इज 300, लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, तो 300 ये छोटा है तो हम 300 लेंगे। सेकंड हमारा यहाँ पे कंडीशन है 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, मतलब 16 इंटू जो भी हमारा डायमीटर आएगा 20 है वो लेंगे हमने अभी यहाँ पे। थर्ड कंडीशन है हमारी 300 mm लेना है। तो इन तीनों में से जो भी छोटा होगा वो हमें एज अ स्पेसिंग बोल के लेना है। वी यूज़ विच एवर इज़ लेस। तो 3 कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन है
लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, मतलब बी और डी में से जो भी छोटा है वो हमें लेना है। सेकंड कंडीशन है 16 इंटू डायमीटर ऑफ बार, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ बार 16 इंटू डी जो भी आएगा वो। और थर्ड कंडीशन है 300। ये तीन कंडीशन में से जो भी लीस्ट होगा, लेस वैल्यू होगी, वो हमें यहाँ पे एज अ स्पेसिंग लेना है। थर्ड है पिच ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। ये हमने यहाँ पे देखा लेटरल टाइज, मतलब क्या, ये जो लेटरल टाइज है ये रेक्टेंगुलर कॉलम में हम लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पिच ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट मीन्स क्या, जो सर्कुलर कॉलम है तो उसमें क्या करते हैं हम, ऐसे हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे निकालना है। पिच ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, जो भी राउंडेड है उसका स्पेसिंग कम होता है तो वो कितना होना चाहिए उसकी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। द पिच ऑफ हेलिकल टर्न शुड नॉट बी मोर देन, काय से बड़ा नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे देखना है हमें। 75 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर 1/6 डायमीटर ऑफ कोर कॉन्क्रीट, डायमीटर ऑफ जो है कोर उससे 1/6 डायमीटर ऑफ कॉन्क्रीट, ये दोनों में से बड़ा नहीं होना चाहिए। द पिच ऑफ हेलिकल टर्न शुड नॉट बी लेस देन 25 mm, मतलब 75 mm या फिर 1/6 डायमीटर ऑफ कोर ऑफ कॉन्क्रीट, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन दिस, और कैसे कम नहीं होना चाहिए 25 mm, और 3 टाइम्स स्टील बार द हेलिक्स, जो भी हम यहाँ पे हेलिकल्स में जो बार प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी 3 टाइम्स, मतलब 3 × 8 हमने जो भी लिया है ये 24 आएगा और ये 25 है। इन दोनों में से जो भी छोटा है वो हमें उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा लेना है। अभी डी है हमारा अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ये अरेंज कैसे करना है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। द अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट एज पर IS, या कैसे अरेंज करना है इसकी डिटेल स्टडी हमें IS 456/2000 क्लॉज नंबर 25.3.2B इज एज फॉलोज, इसके अंदर दिया है। तो वो क्या क्या दिया है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कैसा हो, कितना होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, वो हमने स्टडी किया। अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अरेंज कैसे करना है। इफ़ द लॉन्गिट्यूडिनल बार नॉट स्पेस्ड मोर देन 75 in or either side, the transverse reinforcement need only to round corner and alternate bar purpose of providing effective lateral supports। ये जब हम राउंड करने वाले तो उसका, ये जब हम हेलिकल ऐसे अरेंज करने वाले हैं तो उसको कुछ सपोर्ट्स लगेगा, यहाँ पे सपोर्ट्स लगेगा, तो वो सपोर्ट्स क्या प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इफ़ द लॉन्गिट्यूडिनल बार आर स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस नॉट एक्सीड 48 टाइम्स diameter of bar, the ties are effectively tied in a 2 direction. Additional longitudinal bars in between these bar need to be tied in a 1 direction by open ties। मतलब जो भी है हमारा, इसको क्या करना है, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल बार से ये हम टाइज प्रोवाइड करेंगे और इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से ऐसे टाई करना है। उसकी वजह से क्या, ये हिलेगा नहीं, वो डिस्प्लेस नहीं होगा, स्पेसिंग भी प्रॉपर रहेगी। तो हम ये लॉन्गिट्यूडिनल बार टाइज प्रोवाइड करने के बाद में भी उसको टाई बार से टाई भी करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अभी स्टडी करना है परमिसिबल लोड इन कंप्रेशन मेंबर। जो भी हमने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कौन सा लोड आता है, कंप्रेशन मेंबर है। ये कॉलम जो है वो कंप्रेशन मेंबर है, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो ट्रांसफ़र होता है और ये लोड नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है, तो ये ऐसा कंप्रेशन मेंबर है। तो कंप्रेशन मेंबर्स के परमिटेड लोड्स क्या क्या है उसकी अब हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो परमिसिबल लोड इन अ कंप्रेशन मेंबर, तो क्या क्या परमिसिबल कितना होना चाहिए उसकी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो उसके लिए IS 456/2000 का क्लॉज नंबर B3 पेज नंबर 81 वो हमें रेफ़र करना है। IS 456/2000 ये IS कोड हमें ये डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करना है। उसका पेज नंबर 81 और क्लॉज नंबर B3 वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। हमने पहले ही पार्ट 1 में देखा कि कॉलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है शॉर्ट कॉलम और दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। तो
लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम किसको बोलते हैं हम, तो यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट डायमेंशन बी और डी, इन दोनों का जो रेशो है ये 12 से छोटा होगा तो हम शॉर्ट कॉलम कंसीडर करते हैं। यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम, ये 12 से कम होगा, लेस देन 12, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। मीन्स यल इफेक्टिव और यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी, इसका रेशो है हमारा 6, ये 12 से कैसा है, छोटा है, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कॉलम। ओके, शॉर्ट कॉलम विद लैटरल टाइज, एक कॉलम है उसको लैटरल टाइज हमने प्रोवाइड किया है, तो कैसे डिज़ाइन करना है, कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पे लेने हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। द एक्शियल लोड P ऑन अ पेडिस्टल और शॉर्ट कॉलम रेनफोर्स्ड विद लॉन्गिट्यूडिनल बार एंड लैटरल टाइज इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। P मतलब ये जो भी लोड ऊपर से एक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं हम P। P इज इक्वल्स टू सिग्मा CC, मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट इन अ डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, या परमिसिबल स्ट्रेसेस AC मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, सिग्मा SC मीन्स परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड ASC मीन्स परमिसिबल स्ट्रेसेस इन एरिया ऑफ स्टील, वो हमें यहाँ पे लेना है। तो P इज इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। सिग्मा SC मीन्स परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस फॉर कॉलम बार्स एंड ASC मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार स्टील। अभी सेकंड हमें यहाँ पे स्टडी करना है शॉर्ट कॉलम लैटरल टाइज। देखा हमने शॉर्ट कॉलम विद लैटरल टाइज मीन्स क्या, ये कॉलम है इसको हमने ऐसे टाइज प्रोवाइड किए तो उसको बोलते हैं हम टाइज, और शॉर्ट कॉलम में हमने ऐसे राउंडेड्स ये प्रोवाइड किए बार्स, तो इसको बोलते हैं हम हेलिकल रेनफोर्समेंट। शॉर्ट कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू 1.05 सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, ये देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसको 1.05 से मल्टीप्लाई किया है। हेलिकल रेनफोर्समेंट आएगा तो P को हमें जो आंसर आएगा उसको काय से मल्टीप्लाई करना है, 1.05 से मल्टीप्लाई करना है। द परमिसिबल लोड फॉर कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट सेफली रिक्वायर्ड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ helical reinforcement, the volume of core shall not be less than 0.36 Ag divided by AC minus 1 into FCK FY shall be 1.05। ये इसका जो रेशो है वो कितना है, 1.05, इसीलिए हम इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करते हैं। द परमिसिबल लोड फॉर स्मॉलर मेंबर विद लैटरल टाइज और रिंग्स, तो P हमें ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये हमने देखा शॉर्ट कॉलम के रिलेटेड, अभी हमें देखना है लॉन्ग कॉलम्स के रिलेटेड। व्हेन द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ द लिस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम एक्सीड 12, मतलब यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय B और D, इनका जो रेशो है ये 12 से बड़ा होगा तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग कॉलम। व्हेन अ रेशो ऑफ effective length and the least dimension of the column exceed 12, the column will be considered as a long column. In a design of such column considering the factor of buckling, ये जो भी बड़े कॉलम्स होते हैं, मतलब यल इफेक्टिव और डिवाइडेड बाय B और D, इसका जब ये 20 होगा रेशो, ये 12 से बड़ा है, तो ये हमें कैसे डिज़ाइन करना है, लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम की लेंथ ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसमें बकलिंग के चांसेस ज़्यादा आते हैं। ऐसे क्या है, लॉन्ग कॉलम ये बड़ा है तो उसकी वजह से ये इधर के साइड में ऐसे बकल हो सकता है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। कॉलम कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ बकलिंग, लोअर वैल्यू ऑफ वर्किंग स्ट्रेस इन अ स्टील एंड कॉन्क्रीट इज एडॉप्टेड बाय मल्टीप्लाइंग द जनरल वर्किंग स्ट्रेसेस बाय द रिडक्शन कोएफिशिएंट CR। तो हमें यहाँ पे रिडक्शन कोएफिशिएंट भी लेना है फिर, क्योंकि क्या होता है इसमें स्ट्रेसेस ज़्यादा एक्ट होते हैं और ये बकल भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना है, रिडक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे कंसीडर करना है। सो फॉर लॉन्ग कॉलम
सेफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट CR इंटू करस्पॉन्डिंग सेफ स्ट्रेसेस फॉर शॉर्ट कॉलम। हमने जो शॉर्ट कॉलम के लिए स्ट्रेसेस लिए हैं उसको सिर्फ हमें रिडक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। CR मीन्स रिडक्शन कोएफिशिएंट। एंड सेफ स्ट्रेसेस इन स्टील, सेफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट हमने लिया CR इंटू करस्पॉन्डिंग सेफ स्ट्रेसेस फॉर शॉर्ट कॉलम, एंड फॉर सेफ स्ट्रेसेस इन स्टील CR इंटू करस्पॉन्डिंग सेफ स्ट्रेसेस फॉर शॉर्ट कॉलम। द रिडक्शन कोएफिशिएंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, जो हमें रिडक्शन कोएफिशिएंट चाहिए CR, उसका फॉर्मूला है 1.25 L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48B। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है 1.25 माइनस L इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय 48B। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम रिडक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48B। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टडी करना है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए? इसेंट्रिसिटी मीन्स क्या, लोड हमारा सेंटर में नहीं होगा, ये हमारा कॉलम है और इसका जो लोड है ये सेंटर में नहीं है, ये P जो है हमारा ये सेंटर में नहीं, ये थोड़ा सा सेंटर से बाजू में, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक। तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो इसके लिए आपको रेफ़र करना है IS 456 पेज नंबर 42 क्लॉज नंबर 25.4 एंड 39.3। ये क्लॉज आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए लेना है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी को, ये जो भी लोड है इसका डिस्टेंस जो आएगा ये सेंटर से थोड़ा सा ये है तो इसको बोलते हैं हम E, मतलब इसेंट्रिसिटी, वो कितना हिला है, मतलब कॉर्नर से कितना दूर है। सेंटर कॉलम नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या है, वो इसेंट्रिक है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, हमारे बहुत लोड्स कैसे सेंटर में होते हैं तो ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये हमारा लोड जो इसेंट्रिक होगा, ये इसेंट्रिसिटी होगा तो उसकी वजह से क्या है, इधर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और इधर कम स्ट्रेस आएगा, तो उसकी अनबैलेंस की वजह से क्या है, हमारा कॉलम फेल भी हो सकता है। उसकी वजह से हमें इसेंट्रिसिटी कंसिडर करना है। ऑल कॉलम शैल बी डिज़ाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए तो भी हमें सारे कॉलम डिज़ाइन करने हैं। ई मिनिमम कितना होना चाहिए, ई मिनिमम इक्वल्स टू अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस लैटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30, वो हमें ई मिनिमम लेना है। द अनसपोर्टेड लेंथ L, द लैटरल डायमेंशन कैन बी आइदर B और डेप्थ D। लैटरल डायमेंशन हम B भी ले सकते हैं या D भी ले सकते हैं। कॉलम डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस ऑफ बेंडिंग, उसकी बेंडिंग के ऊपर B लेना है या D लेना है वो उसके ऊपर डिपेंड है। देयरफॉर ई मिनिमम कितना होना चाहिए, LX डिवाइडेड बाय 500 प्लस D इंटू 30 और 20 विच एवर इज़ मोर। इन दोनों में से जो भी बड़ा है 20 या फिर इसका जो आएगा वैल्यू वो यूज़ विच एवर इज़ मोर ई मिनिमम के लिए। ई मैक्सिमम के लिए LY डिवाइडेड बाय 500 प्लस B डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm यूज़ विच एवर इज़ मोर। ये दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हमें ई मिनिमम यहाँ पे कंसिडर करना है। उसके बाद आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो गए तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि लैटरल टाइज कैसे डिज़ाइन करने हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बार्स कैसे लेना है, उसके बाद में हमने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट सर्कुलर में या फिर रेक्टेंगुलर में कैसे प्रोवाइड करना है उसके रिलेटेड, और IS स्पेसिफिकेशन ने क्या क्या स्पेसिफाइड किया है, कितनी वैल्यूज़ लेनी चाहिए, उसके डिटेल्स हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया है। ओके, एनीवन हैविंग डाउट्स यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू।